پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ مسیح خداوند کے مبارک ترین نام میں آج شب پھر آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے زبور 89 آج آپ کے ساتھ مل کر اس کا آغاز کروں گا، اور اس 89 زبور کی پہلی 4 آیات آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا۔ لیکن یاد رہے کہ جب میں زبور کی کتاب کی بات کرتا ہوں تو پھر ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹوٹل 150 مزامیر ہیں، اور ان 150 مزامیر میں 5 کتب پر یہ مزامیر مشتمل ہے، یعنی ٹوٹل 150 مزامیر 5 کتب پر مشتمل ہے۔ ہم تیسری کتاب کے اختتام پر ہیں، یعنی 89 زبور تیسری کتاب کے اختتام پر ہے، اور پھر ہم اس کے بعد ہم 90 زبور کا آغاز کریں گے اس کتاب سے جو چوتھی کتاب ہے۔ لیکن آج اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم اس زبور کو اس طور پر دیکھتے ہیں کہ خدا کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس جیسا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اس نے جو عہد بزرگ داؤد کے ساتھ باندھا ہے اس عہد پر وہ قائم ہے، اور اس عہد پر وہ اسی طرح سے چلتا ہے۔ لیکن کتاب مقدس میں یوں لکھا ہوا ہے، میں ہمیشہ خداوند کی شفقت کے گیت گاؤں گا، میں پشت در پشت اپنے منہ سے تیری وفاداری کا اعلان کروں گا، کیونکہ میں نے کہا کہ شفقت ابد تک بنی رہے گی، تو اپنی وفاداری کو آسمان میں قائم رکھے گا۔ میں نے اپنے برگزیدہ کے ساتھ عہد باندھا ہے، میں نے اپنے بندہ داؤد سے قسم کھائی ہے، میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا اور تیرے تخت کو پشت در پشت بنائے رکھوں گا۔ یاد رہے کہ یہ جو زبور ہے یہ در حقیقت ایتان ازراخی کا مشکیل ہے، ایتان ازراخی کا۔ ان 4 آیات کے بعد کی جو آیات ہیں آج تو ان پر میں کچھ کہنے سے رہا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس زبور میں اس عہد سے متعلق، اس وعدے سے متعلق ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں جو خدا نے بزرگ داؤد سے باندھا ہے۔ یاد رہے کہ ایتان ازراخی کا یہ وہ واحد زبور ہے جس کے علاوہ کوئی اور ایتان ازراخی کا زبور نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہیمان ازراخی اور تیمان ازراخی، ایتان ازراخی یہ ایک ہی شخصیت ہے، لیکن میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ایتان کے نام کے تو کئی اور لوگ بھی ہیں عہد عتیق میں، لیکن ایتان ازراخی کے نام سے یہی وہ واحد شخص ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس کا ذکر سلاطین کی کتاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں بہتر طریقہ سے پتہ چل سکے کہ اس میں کیا ہے۔ 4:31 میں یوں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ سب آدمیوں سے بلکہ ازراخی ایتان اور ہیمان اور کلکول اور دردا سے جو بنی محول تھا زیادہ دانش مند تھا، اور چوگرد کی سب قوموں میں
उसकी शोहरत थी। सलातीन की दूसरी किताब और उसके 4 बाब की 31 आयत की बात कर रहा हूं। बुजुर्ग सुलेमान दानिश से पर शख्सियत है, लेकिन इसके साथ साथ मैं यहां पर इस ईतान इजराकी की बाबत भी देखता हूं। यह भी अपनी जगह पर एक मारूफ शख्सियत थी, दाना शख्सियत थी, और सुलेमान के बाद इसे बड़ा दाना शख्स कहा गया है, जो वाकई दूसरों के लिए बहुत अहमियत की हामिल शख्सियत थी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपकी खिदमत में यह भी अर्ज करूं कि दानाई में यह मारूफ है, सुलेमान की तरह तो नहीं, लेकिन किसी हद तक सुलेमान से ममासलत रखने वाली यह शख्सियत है। लेकिन यह भी हमारे इल्म में इजाफे का सबब है कि यह ईतान सुलेमान के दौरे हुकूमत में खिदमत गुजारी का काम करता रहा, और साथ ही साथ ये कि खुदा दाऊद के जरिया और उसके दौरे हुकूमत में क्या करता रहा, हम इस पर बात करते हैं कि खुदा दाऊद के जरिया और उसके दौरे हुकूमत में क्या कर रहा था, हम उसकी बाबत यहां पर देखते हैं। अब जब हम आयत 1 की बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपकी खिदमत में तलावत किया है, इस पहली आयत में मैंने कहा कि लिखा है, मैं हमेशा खुदावंद की शफकत के गीत गाऊंगा। जब हम शफकत की बात करते हैं तो इससे मुराद खुदा की मेहरबानी, खुदा की मोहब्बत, खुदा की शफकत है। यह मेरे लिए और आपके लिए बड़ी गौर तलब बात है। और ईतान रूल कुद्स की तहरीक से यह कह रहा है कि मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा। क्या करूंगा? मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा। मैं हमेशा खुदा की शफकत के गीत गाऊंगा, और मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा। ये वो बातें हैं जिनको हमें थोड़ी देर के लिए सीखने की जरूरत है। एक बात तो यह है कि वो कहता है, मैं हमेशा के लिए खुदा की मोहब्बत और खुदा की शफकत और खुदा की मेहरबानी की मदा सराई करूंगा। और फिर पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा। मुझे लगता है बिल्कुल ज़बूर 103 की तरह, जहां पर हमें यह जिक्र मिलता है ज़बूर 103 में, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। बाएन वैसे ही यहां ईतान ये कह रहा है, मैं खुदा की शफकत का पुश्त दर पुश्त और हमेशा ऐलान करूंगा। मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ा और अहम तरीन सबक यह है कि खुदा की वफादारी मेरे साथ और आपके साथ है। मैंने और आपने खुदा की वफादारी और खुदा की शफकत का फल समर खाया है। कलवरी पर खुदा ने हम बेवफाओं के साथ कैसी वफा की, जिस वफा का इजहार हम अपने लफ्जों में नहीं कर सकते। लेकिन अहम तरीन बात मेरे लिए और आपके लिए यह है कि क्या हम भी यह कह सकते हैं कि ए खुदा, मैं तेरी शफकत और तेरी मोहब्बत का इजहार करता रहूंगा और उसका ऐलान करता रहूंगा। यह बात कहना कि यीशु ने कहा, जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, सारी खल्क के सामने इंजील की मनादी करो, बहुत आसान है। लेकिन हकीकत यह है, सदाकत इसमें यह है कि क्या वाकई हम पुश्त दर पुश्त कौमों और उम्मतों में खुदा की मोहब्बत और खुदा की शफकत का ऐलान करते हैं।
ये बड़ी गौर तलब बात है और अहम तरीन बात है मेरे सीखने के लिए और आपके सीखने के लिए। इस ज़बूर में खुदा की मोहब्बत के बारे में ईतान अज़राही बोलता है और यह बोलता है कि खुदा की शफकत कैसी है, और यह भी कि मैं किस तरह पुश्त दर पुश्त खुदावन की अजमत और खुदावन की बुजुर्गी के गुण गाता रहूंगा और दूसरों के सामने उसका ऐलान करता रहूंगा। जब हम दूसरी आयत को देखते हैं तो यहां पर लिखा है, क्योंकि मैंने कहा अपने आप में कहा कि शफकत अब तक बनी रहेगी। मैंने कहा यानी अपने आप से कहा, ऐ मेरी जान, क्या कि तेरी शफकत ए खुदा, तेरी मोहब्बत हमेशा बनी रहेगी। तू अपनी वफादारी को आसमान पर कायम रखेगा। यानी उस वक्त दाऊद के साथ खुदा ने जो अहद किया, ए खुदा तू उस अहद को कायम रखेगा। उस अहद में किसी तरह का भी कोई तजाद नहीं होगा। तू उस अहद को कायम रखेगा। यह वो सदाकत है खुदावंद के पाक कलाम में जो हम देखते हैं। वो ईमान के साथ कहता था, खुदा वफादार है, उसके वादे सच्चे हैं, वो बशर नहीं कि झूठ बोले, वो सच्चा खुदा है, अपने कोलो करार में सच्चा, सादिकुल कौल, और जो कुछ वो कहता है वो पूरा करता है। इसीलिए वो कहता है, ए खुदा तेरे वादे, तेरे अहद आसमान पर कायम है और वक्त आने पर तू उन वादों को पूरा करेगा। दूसरी आयत की बात कर रहा हूं। आयत 3 और 4 हमारे लिए बड़ी मानाखेज हैं, क्योंकि आयत 3 में लिखा है, मैंने अपने बरगजीदा के साथ अहद बांधा है। गोया खुदा अब कलाम करते हैं कि मैंने अपने बरगजीदा के साथ अहद बांधा है। ये बरगजीदा कौन है? ये बुजुर्ग दाऊद की बात हो रही है। दूसरा शमूएल की दूसरी किताब और इसका 7 बाब और इसकी 13 आयत लिखा है, वही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम रखूंगा, करूंगा। याद कीजिए कि बुजुर्ग दाऊद से खुदा ने यह अहद किया था कि भाई तेरे हाथ तो खून आलूदा है, तूने बहुत सी जंगें की हैं, अब तू तो ऐसा कर नहीं सकता कि तू उस मकदस को बनाए, लेकिन तेरे सुल्ब से, तेरी नस्ल में से कोई होगा जो उस घर को बनाएगा। और आप जानते हैं कि खुदा ने अपने अहद को कायम रखते हुए बुजुर्ग सुलेमान के जरिया से इस घर को यानी हैकल को बनाया है। लेकिन एक बात जो हमें नजर आती है वो ये कि बुजुर्ग सुलेमान के वक्त गोया इस नबुव्वत, इस बात का एक हिस्सा पूरा हुआ। दाऊद से कहा था कि तेरी सल्तनत अब्दुल आबाद कायम रहेगी। यह दाऊद के वक्त और यह सुलेमान के वक्त पूरा नहीं हुआ। यह कब हुआ? जब मेरे और आपके निजात दहंदा इब्ने दाऊद मसीह खुदावन इस दुनिया में आए और आपने उस अहद के मुताबिक मेरे लिए और कुल जहान के गुनाहगार लोगों के लिए अपनी जान सलीबे कलवरी पर अदा की। उसके बाद जब वो आसमान पर चले गए, अब फिर से आने वाले हैं, एक अबदी बादशाह के तौर पर वो अपनी बादशाही को कायम करेंगे। गोया दाऊद से जब कहा गया कि तेरी सल्तनत का इख्तिताम नहीं होगा, कंटिन्यूअसली रहेगी,
तो इससे मराद ये कि दाऊद के सुल्ब से इब्ने दाऊद मसीह यीशु आएंगे और वो इस बादशाही को, इस राज को कंटिन्यू रखेंगे, और यूं ये तवातर और ये सिलसिला मजीद आगे बढ़ता ही चला जाएगा। ये है वो बात जो खुदावंद के हम पाक कलाम में देखते हैं। लेकिन ये आयत, इस तीसरी आयत का पहला हिस्सा था, मैंने अपने बरगजीदा के साथ अहद बांधा है, दाऊद के साथ वादा अबदी बादशाही का। दूसरा हिस्सा, मैंने अपने बंदा दाऊद से कसम खाई है। अब बात क्लियर हो गई जो आयत के पहले हिस्से में थी कि वो कौन है बंदा, वो है बुजुर्ग दाऊद, वो बरगजीदा बुजुर्ग दाऊद हैं और उनसे कसम खाई है। कसम से मुराद वो कसम नहीं है कि हम खोटी चीज कसम खाकर खरी करके बेचते हैं, नो, ये वो कसम नहीं है। यहां पर इस कसम से मुराद ये है, मैंने अहद बांधा है, मैंने वादा किया है, मैंने पक्की बात जिस पर एक लिहाज से मैंने सील कर दी है, मैंने बुजुर्ग दाऊद के साथ अपना अहद बांधा है। और वो क्या? आयत 4, मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए कायम रखूंगा। मैं तेरी नस्ल को, ए दाऊद, हमेशा के लिए कायम रखूंगा। दाऊद की नस्ल, दाऊद की सीध और उसकी पुश्त आने वाली नस्लों की तरफ भी इशारा है, लेकिन बिलखसूस मुनज्जी आलमीन, मेरे और आपके निजात दहंदा की तरफ इशारा है कि वो खुदाबंद है जिसकी बाबत ये कि मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए कायम रखूंगा, खत्म नहीं होने दूंगा। इवन प्रेजेंट इसराइल पर कितने जुल्म के पहाड़ टूटते हैं, और जब तक मसीह खुदावन अपने आमद सानी के दूसरे हिस्सा में आ नहीं जाते, अपने मुंह के कलाम, मुंह से निकलने वाली तलवार के जरिया से दुश्मनाने इस्राइल को सफाए हस्ती से मिटा नहीं देते, तब तक इस्राइल कायम रहेगा, उसके बाद भी कायम रहेगा। इवन इस्राइल खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान भी लाएगा, वो वक्त आएगा। मुकाशफा की किताब की स्टडी हम कर रहे हैं, और अगर आपके पास बाद में टाइम हो तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर, वीडियोस में जाकर न्यू टेस्टामेंट में जाएं और मुकाशफा की किताब में मुकाशफा की किताब की वीडियो टीचिंग्स से फैजियाब हो सकते हैं, और आपको पता चलेगा कि एंड टाइम यानी आखिरत, इल्मुल आखिरत के लिए क्या क्या हो रहा है और क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, और इस्राइल के साथ क्या होगा, हर मजदून की जंग क्या है, तमाम डिटेल्स आपको बिल तफसीर और तफसील मिलेगी। लेकिन आयत 4 के में यह लिखा है, मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए कायम करूंगा और तेरे तख्त को पुश्त दर पुश्त बनाए रखूंगा। दाऊद, तेरी सल्तनत अबदी है, कायम रहने वाली। दाऊद की जो तारीख की कुतुब में हम देखते हैं, फिजिकल बादशाही आरजी बादशाही थी, जल्द खत्म हो गई। लेकिन आप जानते हैं कि दाऊद के बाद वही बादशाही जिसका खुदा ने कहा, अहद किया था, वादा किया था, यहां पर लफ्ज कसम खाई है, वो बादशाही सुलेमान, और फिर उसके बाद इसराइल, और फिर मुनज्जी आलमीन, मेरे और आपके निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचती है।
इसीलिए तो उनका नाम खुदाबंदों का खुदाबंद और बादशाहों का बादशाह है। और वो मेरे और आपके निजात दहंदा हैं। अब उनकी सल्तनत को कोई जवाल ना था, ना है और ना होगा, क्योंकि ये खुदा का अपना बनिनो इंसान के लिए मंसूबा है। और वो लोग मुबारक हैं जो उस अबदी बादशाही में दाखिल होंगे और खुदा के इस जिंदगी बख्श कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी में इन अहूद को पूरा पाएंगे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इन पहली 4 आयात के इख्तिताम पर फिर से एक लफ्ज है जिसको यहां पर सिलाह के तौर पर लिखा हुआ है और हम पढ़ते हैं। लफ्ज सिलाह के माना वक्फा या पाज, रुकना के हैं, और हम भी यहां पर रुकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह कि थोड़ा रुक कर माजी की तरफ देखा जाए कि खुदा ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। इवन आज मैं और आप मिलकर खुदा की जात के बारे में, खुदा की वफादारी के बारे में, खुदा की मोहब्बत के बारे में, खुदा के प्यार के बारे में इस बात को देखें कि खुदा की वफादारी मेरे लिए कितनी है। और यह सिला मेरे लिए और आपके लिए भी है कि रुको, दिल पर गौर करो, जहन पर गौर करो, सोचो ख्यालों पर कि खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए क्या क्या किया। ईतान अजराकी कहते हैं कि मैं खुदावंद की शफकत और मोहब्बत का ऐलान करूंगा। मैं और आप खुदा की शफकत और मोहब्बत के लिए अब क्या करना चाहते हैं, किस तौर पर हम उसके लिए काम करना चाहते हैं, यह मेरे लिए और आपके लिए बड़ी गौर तलब बात है। मुबारक है वो मसीही मोमिनीन जो इस नजात के पैगाम की तशहीर कौमों और उम्मतों में करते हैं। और खुदावंद मुझे और आपको यह फजल अनायत फरमाए कि हम इस नजात के पैगाम को, खुदा की शफकत जो हम पर हुई, खुदा की मेहरबानी जो हम पर हुई, खुदा की मोहब्बत का ऐलान हम दूसरे लोगों के सामने करते चले जाएं, ताकि खुदावंद दूसरे लोगों की जिंदगी में भी राज करें और उनकी बादशाही बहुत जल्द कायम हो सके। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत अनायत फरमाए। मुख्तसर सी दुआ के साथ इख्तिताम करता हूं। ए कादिर मुतलक खुदा, दिल की गहराइयों से ममनून हूं इस मीडिया फैसिलिटी के लिए जिसके वसीला से हम आपके कलाम को कौमों और उम्मतों तक पहुंचाते हैं। आपकी शफकत के लिए और आपकी मोहब्बत के लिए हम दिल की गहराइयों से ममनून हैं। और खुदावन आज इन तमाम अजीजों के लिए जो हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर, फेसबुक के पेजेस पर, यूट्यूब और इवन व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इस कलाम को सीखते हैं, ऐ खुदावन उन सब के लिए आपकी बरकत तलब करता हूं। चाहता हूं कि आप अपने लोगों को सलामती और जिंदगी और उम्र की दराजी बख्शें। उनके बिगड़े हुए काम यस्सु के नाम से बनना शुरू हो जाए। और खुदावन आप मुमकिन कीजिए कि आपके लोग आप में परवान चढ़ें और आपका नाम आपके लोगों के वसीला से जलाल और इज्जत पाता रहे। वो तमाम जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हाल हैं, आप उनकी जरूरतों को जानते हैं। अपने कुदरत वाले नाम में अपने लोगों पर रहम कीजिए और उनको शिफा, सेहत
اور تندرستی عنایت فرمائیے. ساری عزت اور سارا جلال آپ کے پاک اور بزرگ نام کو دیتے ہیں. خداوند ہماری دعا کو سنیے اور قبول فرمائیے، کیونکہ مانگتے ہیں مسیح خداوند کے جلالی اور مقدس ترین نام کے وسیلہ سے. آمین. خداوند آپ سب کو برکت عنایت فرمائے. پھر ملیں گے جب خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی. گاڈ بلیس یو آل.